In the last week, we studied about, we began with an introduction to the fluid mechanics, and then we moved on to define fluid mechanics, what are fluids and what is mechanics and how they are interrelated. And then we discussed about the dimension system. We defined dimensional homogeneity. We discussed some fluid properties, just to quickly go through them. We discussed about density, specific gravity, and then we discussed a little about viscosity, I believe. Did we discuss about viscosity? Did we? Yes, sir. And we derived our relationship, and then we described what is Newtonian fluid, what is non-Newtonian fluid, what is Bingham plastic. Is it so? So I will just give a quick review on that, what we did in that derivation and how we defined, and then we'll move on to surface tension and other properties that we intend to study. Okay, just to quickly re-elaborate to you. Are you seeing my writing on the paint screen? Yes, sir. Okay, we defined viscosity as resistance to fluid flow, resistance between the layers of fluid, and we derived an equation. We defined two plates, A and B, and we defined that, okay, the lower plate B is fixed and upper plate A is movable, and it is moving with a velocity function u of y equals to v, where v is a constant. Then we define that, okay, at time t equals to 0, we connect A and B, where the velocity u of y for plate B is, what is it? ये क्या थी? If plate B is fixed, what will be its velocity? 0. Yes, 0 meter per second. And the distance between the two plates was defined as L. The upper coordinate is, the vertical coordinate is y, and the horizontal coordinate was defined as, what was it defined as? U of y. Okay. Then we moved to time dt, and after some time t, after time, let's say dt, the point plate A will move 0.1 dash. Do you agree? If we move plate A with velocity v, the fluid will go deformation, undergo deformation, it will try to flow, and because of this flow, 0.1 will shift to 0.1 dash by traveling distance dA in time dt. And during this scenario, the angle of deformation would be delta beta. Clear? So we defined d beta equals to, I'm writing d beta as dB here. What is it? What was d beta? We defined tan of d beta, and then we mathematically assume that as d beta will be very small angle, so its angle, it is equal to the angle itself. So tan of the angle is equal to the angle itself. So dB tan of that delta beta is dA by dA over L. dA by L. Clear? And then we defined that dA equals to velocity v into time delta t from the reference equation s equals to velocity multiplied by time. एग्री कर रहे हैं जी? ठीक है, ऐसे ही था. Defined. Okay. Am I audible? Yes, sir. Then we defined coordinates of point 0, that were, what were they? 0, 0, coordinates of point 0, and coordinates of point 1 dash. G, coordinates of point 1 dash. U and L. V, L. X coordinate is velocity,
and y coordinate is distance. At point A, distance is the difference between the two plates. The height is L and x coordinate is velocity v. So v comma L. Then we calculated the slope of this line. We defined the equation of line as y equals to mx plus c for line O1 dash. I write it as line O1 dash. This is the equation for line O1 dash. Here y is y and m is, what is m? Slope of this line. Can you calculate the slope? How do you calculate the slope? Vertical coordinate, difference of vertical coordinates divided by the difference of horizontal coordinates. So what is the difference of vertical coordinates? L minus 0 over U minus L 0. minus 0 by V. V minus So 0. L by V is the slope of this line. What is x here? It is U of. Do you agree? And then C. What was C? In the last class, I told that all the lines C is usually y-intercept, and all the lines that are passing through origin or cutting the x-axis, they have y-intercept as 0. So we don't need to write C, or we don't need to calculate C. From this, we derive the velocity differentiation equation as E by L into y. This is our velocity equation. What is the velocity at the top plate? If we put y equals to L in this equation, L will cancel out. We came to know that, okay, the velocity would be V. Velocity at the bottom plate, we need to put y equals to 0 in this equation. So velocity would come out 0. What is the velocity at midpoint? We'll replace y by L by 2. I will be replaced by L by 2, midpoint. This is how you will be calculating velocity of the fluid at different points along this length L. Then we, from equation here, this equation, the color. This is your equation A. Where is our other equation? Give me just a minute. This is our equation B. From A we write, and this is C. From equation C and A, I write dB equals to V dt by L. Any confusion? I've just replaced the value of dA in equation C with V dt as we calculated in equation A. And I rearrange this equation as dB by dt equals to V by L. Clear? This is your equation number 1. What is this equation representing? dB is your angle of deformation, and dB by dt is rate of deformation, rate of angular deformation. This is equal to V by L. V is constant as well as L is constant. On the other hand, I am taking derivative. I change just color change kar dete taaki aapko confusion na ho. Taking derivative of equation B with respect to what? Y. Okay. Clear? तो क्या आएगा डेरिवेटिव इक्वेशन सी का बी का सॉरी du by dy equals to v by L. So by comparing equation 1 and 2, we get dB by dt equals to du by dy equals to v by L. Clear? Is it clear? So this proves that rate of angular deformation is equal to the velocity gradient is equal to v by L. And then we defined that according to Newton's
law of viscosity, और spellings अगर गलत हो रहे हैं तो उसको kindly check कर लीजिएगा. Tau, I write it as tau equals to, tau is proportional to du by dy or d beta by dt, because both are same, both are equal. So tau equals to mu, write it as mu du by dy, and mu is your viscosity. So all the fluids, laws of viscosity are called Newtonian fluids, and those fluids which do not follow this law called non-Newtonian fluids. And then in non-Newtonian fluids we have two types of fluids that are shear thickening and shear thinning. And then we have another third type of fluids which we call as Bingham plastics. Okay, is it clear? So we ended our last lecture at this point. Today we are going to just solve a short problem regarding viscosity, and then we will move on to the topic of. I also gave you a reading assignment in the last class. Do you remember it? Temperature dependence of viscosity, pressure dependence of viscosity for different fluids. It was a reading assignment. Did you go through it? No, then you should go through it. In the next class, maybe we can have a short discussion on that topic as well. Okay, Ji. In front of you, you can see a problem statement. The velocity distribution for the flow of a Newtonian fluid between two wide parallel plates is given by the equation u equals to 3v by 2 into 1 minus y squared by h squared. What you are given is a velocity function. Using this equation, you can calculate velocity at any point between these two plates. And given this equation, you are defined that the capital V is a fixed value of 0.6 meter per second, and the viscosity of the fluid is 2 Newton second per meter square, and the distance between the two plates is 5 millimeters, 2h. 2h is 5 millimeters, which means h is 2.5 millimeters. You need to determine the shear stress at the bottom wall and the shear stress on a plane parallel to the walls passing through the center line, mid plane. In this case, upper plate as well as lower plate, both are moving. The plates are not fixed, they both are moving. That's why we are having maximum velocity at the center line. That curve is showing that we have maximum velocity at this center line. And then we have minimum velocity because at the upper plate, fluid has attached itself to the plate, and at the bottom plate, it has attached itself to the plate. Is it clear? Can you calculate the shear stress at the bottom wall using Newton's laws of viscosity? Okay. Further downwards, we define a new text box here. Is it visible, Ji? What I'm writing? Problem solution. We are given u equals to 3v by 2 into 1 minus y by h whole square. SAG. What we need to calculate for using Newton's laws of viscosity is du by mu du by dy. Mu is given to us as 2 Newton seconds per meter square. We need to calculate du by dy. So we can calculate that by taking the derivative of equation 1. So we take derivative with respect to du by would be equal to जी जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं.
quickly, anyone? 3v/2 is a constant, तो ये तो इक्वेशन के बाहर रहेगा. 1 minus y square by h square. In that part, 1 is constant, derivative of 1 would be 0. In the next part, y square is a variable, h is a constant. So h square will remain as it is. We will be calculating derivative of y square. What would be it? 2y. ठीक है, तो 3 और माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा, माइनस 3v into 2y by h. से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपलीफाई हो गया, तो फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो वी जस्ट y by h 3vy by h square. क्लियर हो गया जी? Now stress at the bottom wall would be equal to tau, capital T equals to mu is 2 into minus 3, v is 0.6 into y. G, what is y at bottom wall? H or minus h? Minus h. ठीक है, because you are defining reference at the center line. If you see the figure, y is defined from the center line. Going above the center line will give you positive values of y, and going downwards will give you negative values of y. So we'll write divided by minus 2.5 no, right, to minus 2.5 into 10 raised to the power minus 3 square, and bracket is closed. क्या वैल्यू आएगी जी? सर इसमें y क्या चीज है? Y is the distance from center line to the bottom plate. जी सर. And that is minus 2.5. If I ask you to calculate, okay, the distance from the center line to the point where y is minus 1.5, 1 millimeter plate, minus 1. Okay. That is mu, viscosity की value है. We are using equation number 2 here. Equation number 2 के अंदर ये सारी values आई हैं. ये हमने equation number 2 के अंदर values plug in की हैं. ठीक है. Zero का क्या value आ रही है जी? H is a fixed value. H is distance. Y is reference distance from your point, starting point from your reference line to the bottom plate or the top plate. Because we are calculating stress at the bottom plate, so from reference we are moving in the downwards direction. Yes, we have used H. Sorry, we have used H is negative. Sorry, इसको मुझे edit करने देना. Just give me a minute. सर 1440 आंसर आ गया. थोड़ा सा इसमें एक मिनट की गड़बड़ है इक्वेशन के अंदर. Let me rewrite it. Tau equals to 2 is your viscosity. Then we have du by dy equals to what was it? 3v by minus 3v by minus 3 into v is 0.6 into y. Y was minus 2.5 into 10 raised to power minus 3 divided by h square, which was 2.5 into 10 raised to power minus 3 square. We missed the value of y in fact while we were discussing this thing. सर एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी. वो कैंसिल कर दें, उसको आप लिखा रहने, that is your choice. So this is your required equation. सर ये u is equal to minus 3vy over h square, ये इक्वेशन सर कैसे ड्राइव हुई? कौन सी इक्वेशन जी?
du by dy is equal to minus 3y over h square. du by dy equals to माइनस डेरिवेटिव लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू y. डेरिवेटिव लेना आते हैं ना मेरे भाई? Okay. ठीक है, तो वी टुक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो व्हाटएवर द वैल्यू वुड बी इक्वल टू टॉ इक्वल्स टू सम वैल्यू बाय न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसमें कैलकुलेट कर लें. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. माय क्वेश्चन इज टू यू व्हाट विल बी स्ट्रेस एट द अपर प्लेट? Stress at the upper plate. We will just change y from minus 2.5 to plus 2.5 and we will get the value at the upper plate. ठीक है, उसके बाद आपसे ये रिपीट करिएगा अपर प्लेट वाला. अभी हमने स्ट्रेस कैलकुलेट की है मेरे भाई बॉटम प्लेट पे. ठीक है, बट वही अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप प्लेट पे स्ट्रेस क्या होगी तो वहां पे हम सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे. कितना ऊपर मूव करेंगे जहां तक हमें टॉप प्लेट मिल जाए, दैट इज 2.5 मिलीमीटर. सो हम नेगेटिव 2.5 की बजाय y की जगह प्लस 2.5 रिप्लेस करेंगे. अगर हम रेफरेंस बॉटम प्लेट पे डिफाइन करते फिर क्या होता? तो ऊपर वो था जब हम टॉप प्लेट पे कैलकुलेट करते, हम बॉटम प्लेट पे कैलकुलेट करते तो y 0 होता. ठीक जी सर. दैट डिपेंड्स कि हम किस तरह से चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स द रेफरेंस कैलकुलेशन. उस वक्त चीजें और जो वेलोसिटी प्रोफाइल वो और तरह से कैलकुलेट करके आती है. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ द पार्ट बी, स्ट्रेस ऑन अ प्लेन पैरेलल टू वॉल्स पासिंग थ्रू द सेंटर लाइन. वहां पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशन हमने ड्राइव लिखी हुई है म्यू du by dy, जब ये हम एक्सपेंड करके लिखने के du by dy की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो वहां पे हमने y क्या पुट करना है? 0. ये जब वहां पे हम y 0 पुट करेंगे तो ऑल टुगेदर रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा. तो सेंटर लाइन पे हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है वो 0 होगी, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज 0. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट शुड बी मैक्सिमम. ठीक है, तो एट द सेंटर लाइन वी विल हैव मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी. क्लियर है जी? इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक के एंड में गिवन है 1.63, 1.64, 65, 68 एंड 7 चैप्टर नंबर 1 के एंड पे. ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन प्रॉब्लम्स को फॉलो कर सकते हैं, सॉल्व कर लें. अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हम उस प्रॉब्लम को फिर डिस्कस कर लेंगे. ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन. आप सब इस प्रॉपर्टी से बड़ी अच्छी तरह अवेयर हैं, ऐसे ही जी? किसी का कोई इससे वो तो नहीं है कि किसी को ना पता हो सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस का नहीं पता तो टेंशन का जरूर पता है, ऐसे ही है? टेंशन क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन अ लेयर. थोड़ी देर के लिए साइंसदान हम बनना छोड़ देते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम साइंसदान. आई जस्ट आस्क यू द मीनिंग, रेलेवेंट मीनिंग, जो भी आप जिंदगी में टेंशन से क्या मीनिंग लेते हैं. स्ट्रेस, अपने मसल्स को थोड़ा आप टाइट कर लेते हैं, थोड़ी सी बॉडी के अंदर जो वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. आप एक्सटर्नल जो फोर्सेस रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज टेंशन. सरफेस टेंशन का मतलब है जब सरफेस उन फोर्सेस को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा. ऑल फ्लूइड्स हैव दिस प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट सम फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस टू सम पॉइंट. ठीक है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. अब टेंशन जो है वो आपको क्या करती है? कंप्रेस. आप झुंझला जाते हैं और आप उसके अगेंस्ट पे रेजिस्टेंस करते हैं, आप एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, आप एक्सटेंसिव स्ट्रेस लगाते हैं. तो रेजिस्ट टेंसिव फोर्सेस, टेंसाइल फोर्सेस. विस्कोसिटी इज टू रेजिस्ट shear deformation, shear forces, shear stress. टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है? इज टू रेजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस. तो वो पानी के ऊपर जब वो कीड़ा सा भाग रहा होता है, स्पाइडर, आप देखते हैं क्यों? पानी के अंदर एक लिमिटेड स्ट्रेस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करता है. पेन आप फ्लोट कराते हैं, नीडल फ्लोट कराते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके देखे होंगे आपने अपनी एफएससी लेवल की फिजिक्स में. ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो क्या यूनिट हुआ? न्यूटन पर मीटर. स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. So I will just write in front of you. It is represented by sigma. The symbol sigma equals to F by L. This is surface tension. और यूनिट इसके क्या बन गए? न्यूटन पर मीटर. Clear? Now we define it
ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली कि हो क्या रहा है, हम क्यों सरफेस टेंशन में इतने इंटरेस्टेड हैं, फ्लूइड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। वो कंसिडर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जिसको बबल कह लें, ड्रॉपलेट कह लें, ड्रॉपलेट ऑफ एनी फ्लूइड, एयर का ड्रॉपलेट है, वाटर का है, किसी ऑयल का है। क्यों बनता है ड्रॉपलेट, या हाउ इज इट इज मेंटेनिंग इट्स शेप, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर इसमें ड्रॉपलेट को कट करूं टू पार्ट्स में, तो आपको इस तरह का सेमीस्फीयर नजर आएगा, ऐसे ही है, सेमीस्फीयर नजर आएगा, हाफ स्फीयर। अब इस हाफ स्फीयर पर कैसी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, एक सरफेस टेंशन की फोर्स होगी जो कि इसकी अलोंग लेंथ एक्ट करेगी, ठीक है। तो आई चेंज फॉर योर रेफरेंस, तो ये जो सरफेस टेंशन की फोर्स है इसकी पेरिफेरी के अलोंग हमें नजर आएगी, पूरी पेरिफेरी के अलोंग, ठीक है। मैं सारी ड्रॉ नहीं कर रहा, इस पूरी पेरिफेरी जो सर्कल बना हुआ है इसकी पूरी पेरिफेरी के अलोंग हमें सरफेस टेंशन की फोर्स नजर आएगी जो कि इसकी शेप को मेंटेन कर रही है। और उसके रिवर्स में हर फोर्स का एक रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्टिव फोर्स कौन सी है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स। दैट प्रेशर फोर्स, जैसे ही वो फोर्स ज्यादा अपनी शेप लूज कर देता है, जो बबल है वो रस्ट कर जाता है, ठीक है। सो विल हैव दिस प्रेशर फोर्स है। सो ग्रीन वाली हमारी प्रेशर फोर्स है, और ये जो ऑरेंज सी है या रेड सी है ये हमारी सरफेस टेंशन की फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आई जस्ट, चलिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर लिख देता हूँ ताकि आपको force because of pressure according to forces, according to equilibrium of forces, this surface tension force should be equal to this pressure force. क्लियर है जी। तो वही जो मैकेनिक्स में हम काम करते थे कि इक्विलिब्रियम लॉज हमने लगाने हैं, वो सब कुछ हम यहाँ कर रहे हैं। विस्कोसिटी के अंदर भी हमने वही किया, सरफेस टेंशन। तो अब हम सिर्फ फ्लूइड्स के ऊपर वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स के रेफरेंस से हमने उनको सोचना है, देखना है। लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉपलेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होगी, that would be equal to sigma into L, and L would be circumference of the circle, ठीक है, 2 into pi into R, ठीक है। so sigma into 2 pi R। क्लियर हो गया जी। प्रेशर फोर्स FP, this would be equal to pressure into area. Let's say pressure remains P, area here is pi into R square। Clear? Is it clear ji? Any question? According to the force balance we have written, sigma, I just need 2 into sigma into pi R should be equal to P into pi into R square। Clear जी? If we simplify the equation, we see that R would cancel out, pi would cancel out. So we'll have 2 sigma equal to P clear. So we'll have sigma equal to PR by 2.
और on the other side we can write P equals to 2 sigma by R. तो जो भी हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उस हिसाब से हम इस इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात? अभी इक्वेशन प्रेजेंट क्या कर रही है? सर काइंड एक दफा दोबारा से रिपीट करते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन दोबारा से रिपीट कर दूं। देखिए आपके पास जो वाटर ड्रॉपलेट हमने लिया उस पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर तो वो ड्रॉपलेट पूरे हम कंसीडर करें तो उसके ऊपर फोर्स बैलेंस है, एक प्रेशर फोर्स है ऑल टुगेदर, उसके एक इंटरनल प्रेशर होगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर होगा, उन दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए आपका जो बैलून है या जो ड्रॉपलेट है वो अपनी शेप मेंटेन कर रहा है, उस शेप में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम उस ड्रॉपलेट को हाफ में कट करें, देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सपोजिंग दिस फोर्सेस जो उस ड्रॉपलेट के सरफेस की पूरी उस रेजिस्टेंस, उस एक्सटर्नल प्रेशर को बियर कर रही है अलोंग दी लेंथ। जैसे हमने वो कट किया तो फोर्स बैलेंस में हमारे पास आगे के सरफेस टेंशन की फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। they should be equal to the pressure forces। ठीक है, I'll just come back to जी आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्सेस प्रेशर फोर्सेस के इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा जी कि सरफेस टेंशन इक्वल होती है सिग्मा बाय फोर्स बाय एल। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए उसको जस्ट रीअरेंज किया सिग्मा इनटू एल, एंड एल इज बिकॉज़ इट्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ सर्कल एंड द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इट्स circumference 2 pi r। on the other pressure forces is pressure into area and area of a circle is pi r square। ठीक है, तो pi r square पे हमने दोनों को इक्वेट किया, सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यस यस। मूविंग ऑन जी, अब आपको कोई क्वेश्चन? Do we have some spherical thing here? जब हम स्फीयर की बात करेंगे ऑल टुगेदर उसके पूरे सरफेस पे हर तरफ से सरफेस प्रेशर फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी बाहर की तरफ से, और अंदर की तरफ से सरफेस टेंशन की जो फोर्सेस है अलोंग ऑल द लेंथ ऑफ दैट, वो फिल तो नहीं है, सॉलिड तो नहीं है, हॉलो होगा ना। तो अगर उसको मैं ओपन कर दूं दैट वुड बिकम अ सरफेस। तो उसकी अलोंग द लेंथ जो बाउंड्री बनेगी, जो सर्कुलर बाउंड्री बनेगी, उसी पे सरफेस टेंशन फोर्सेस सारी चीज को रेजिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो यही लेंथ होगी जो सर्कल की। अगर मैं स्फीयर को कट करूं, ओपन करूं, तो दैट वुड फ्लैट बॉडी तो सर्कल ही बनेगा। ठीक है, स्लाइस करना शुरू कर दूं तो सर्कल ही बनेगा। ठीक है, मूविंग ऑन जी, हमने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया हुआ है, तो ये चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब दिस P इज बेसिकली डेल्टा P। ठीक है, जो P हमने अपनी इक्वेशन में लिखा दैट इज नॉट P, दैट इज डेल्टा P। डेल्टा P क्यों है? क्योंकि एक प्रेशर फोर्स ड्रॉपलेट के अंदर है और एक बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है उसको सरफेस टेंशन में बैलेंस करना है, तभी वो ड्रॉपलेट अपनी शेप मेंटेन करेगा। ठीक है, तो टू कैलकुलेट दैट डेल्टा P हमने वो इक्वेशन ड्राइव कर ली 2 सिग्मा बाय r। अब इसकी वजह से होता क्या, रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? इसकी वजह से आपको राइज एंड फॉल मिलता है, कैपिलरी रिएक्शन जिसको आप कहते हैं। आप सबने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे अपने एफएससी की लैब के अंदर, फिजिक्स की लैब में या केमिस्ट्री की लैब में, कि जितनी थिन ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं एक बड़े सरफेस के कंटेनर के अंदर, अगर वो फ्लूइड से फिल्ड है या लिक्विड से फिल्ड है, तो जो वाटर लेवल वो डिफरेंट नजर आता है हमें। स्मॉल ट्यूब में वाटर लेवल राइज कर जाता है, और राइज करने के साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, इट इज आइदर कन्वेक्स और कनकेव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड। अगर आपने थर्मामीटर, जो मर्करी थर्मामीटर होता है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर क्या बन रहा होता है, वाटर जो मर्करी लेवल है, दैट इज नॉट फ्लैट। ठीक है, दैट इज कनकेव। और अगर उसी के अंदर मैं वाटर डाल दूं इंस्टेड ऑफ मर्करी, तो वो कन्वेक्स बनना शुरू कर देगा। अब ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन पे ये किस वजह से है? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज की वजह से, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की हैं, कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन क्या है? फोर्सेस विद इन मॉलिक्यूल्स, अपने फ्लूइड के अंदर जो फोर्सेस हैं जो आपस में एक दूसरे को मॉलिक्यूल के साथ जोड़ी, दैट इज कोहेशन। एडेशन इज फोर्सेस ऑफ द फ्लूइड विद द सरफेस इट इज इंटरेक्टिंग। ठीक है, तो अभी जो कैपिलरी एक्शन है या जो वाटर लेवल मेनिस्कस बनेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस। अगर एडेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस विद द सरफेस स्ट्रांग है अगर फ्लूइड की, तो फिर हमारे पास कौन सा मेनिस्कस बनेगा? वाटर लेवल ड्रॉप करेगा, फ्लूइड लेवल विल ड्रॉप, तो हमारे पास ये कन्वेक्स शेप आएगी। ऑन दी अदर हैंड, इस तरह की अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, तो वाटर लेवल इस तरह से नजर आएगा आपको, अगर आपकी एडहेसिव फोर्सेस सरफेस स्ट्रांग हैं आर ग्रेटर देन योर कोहेसिव फोर्सेस।
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इन्वर्टेड कब बनेगा आपके पास लेवल, जब आपके पास कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांग एज कंपेयर टू द सरफेस। ठीक है जी, सर समझ आ गई एडहेसिव बात? फोर्सेस दोबारा बताइएगा। एक आपका खिंचाव है विद इन योरसेल्फ, एक चीज कितनी स्ट्रांगली आपस में जुड़ी हुई है, और साथ में उस चीज की कुछ ना कुछ जो है वो अटैचमेंट है किसी सरफेस के साथ। ठीक है, आप ज्यादा देर किसी चीज पे हाथ रखें तो आपका हाथ ही रहेगा, कुछ देर बाद वो सरफेस के साथ भी एक एडेशन शो करेगा। तो एडेसिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जो किसी सरफेस के साथ किसी फ्लूइड या किसी भी दूसरे मटेरियल की हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नेट, दे हैव वेरी स्ट्रांग एडेसिव फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस को आप कहते हैं। ऑन द अदर हैंड आयरन विद आयरन कोई एडेसिव फोर्सेस नहीं। ठीक है, उनके अंदर क्या होंगी, कोहेसिव फोर्सेस होंगी अगर वो सिंगल पीस है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट पीसेस हैं तो उनके दरमियान कोई एडेसिव फोर्स, बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट सरफेसेस। तो इसी तरह फ्लूइड्स की भी कोई अटैचमेंट है दूसरे सरफेसेस के साथ, जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस के ऊपर, फ्लूइड के भी और सॉलिड्स के भी हैं, जो भी बॉडी से तो इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहां कोई ना कोई एडेसिव फोर्स बनेगी। अब डिपेंड करता है कि वो एडेसिव फोर्स कितनी स्ट्रांग है, आइदर इट इज एज स्ट्रांग कि वो जो लिक्विड या फ्लूइड है उसके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जो मॉलिक्यूल्स ने अपने फ्लूइड को छोड़ के, अपनी यूनिफॉर्मिटी को छोड़ के दूसरे सरफेस से ज्यादा अटैचमेंट शो कर दी है, तो वहां पे फिर आपके पास कुछ इस तरह का लेवल नजर आएगा ट्यूब्स के अंदर, स्मॉल ट्यूब्स के अंदर आपको, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसे फोर्सेस स्ट्रांग है, विद इन स्ट्रांग है फोर्सेस, सरफेस से इतनी स्ट्रांग फोर्सेस नहीं बन रही, तो फिर आपके पास कनकेव इस तरह का इन्वर्टेड लेवल बनेगा, जैसा आपको मरकरी के केस में नजर आता है। अब इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं इन डिटेल, हो क्या रहा है। वी हैव अ कंटेनर, बड़ा कंटेनर है, फिल्ड विद सम फ्लूइड XYZ, आप उसको वाटर समझ लें, मरकरी समझ लें, जो भी है, एंड वी इंसर्ट अ स्मॉल ट्यूब इन दिस कंटेनर, सॉरी फॉर द line, so we have this small tube here and here। ठीक है जी, ये ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, कैपिलरी ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक फ्लूइड लेवल बनता है। ठीक है, आइडली दिस लेवल शुड बी लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, इट इज, इसको हम करते हैं, इट इज लाइक दिस। ठीक है जी, तो अब ये क्यों हो रहा है, जो बात अभी हमने की कि कोहेसिव फोर्सेस आर वीक एंड एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रांग, तो ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग लिक्विड्स वेट कर रहे हैं सरफेस को, वो सरफेस उनकी जान नहीं छोड़ रहा, सरफेस के साथ वो चिपके रहना चाह रहे हैं, दे आर वेटिंग द सरफेस। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स को जिनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस आर कॉल्ड वेटिंग, और रिवर्स में जो है हमारे पास उनको हम कहते हैं वाइस वर्सा नॉन वेटिंग। ठीक है, सर यानी वेटिंग है। सर जी जी, सुनो सर, ये जो आपने डायग्राम बनाया इसमें इस मॉलिक्यूल में एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है कि कोहेसिव ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं तो इसलिए उनकी वॉल्यूम कम है, तो नीचे की तरफ डिप हुआ है। यानी खींच नहीं रहे, सरफेस उनको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, आइडली तो मॉलिक्यूल्स को नीचे ही होना चाहिए सारे के सारे। देखा ना, जो मैंने आइडियल लाइन ड्रॉ की पहले, जो ब्लू में आपके पास, इसको अभी मैं ग्रीन करने लगा हूँ, आइडली तो ये लाइन होनी चाहिए थी आपके पास। ठीक है, ये ग्रीन वाली, ऐसा लेवल बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा लेवल बना नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के साथ फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग है, तो सॉलिड के साथ चिपके रहना चाह रहे हैं, इसलिए ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, जो सेंटर लाइन है वो तो आइडियल लोकेशन पे है, बट जहां पे वो सरफेस के साथ अटैचमेंट में आ रहे हैं वो उस सरफेस के साथ रहना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास लेवल जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल नजर नहीं आ रहा। सॉरी सर अगर मतलब जो सर सेंस बनती है, अगर उनकी एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो वो मतलब उनकी जो वॉल के साथ अटैचमेंट होती तो नीचे डिप साइड पे होती, ऊपर ना जाती।
मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। इसमें सर अगर एड्रेसिव फोर्सेस ज्यादा होती तो ये मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ ऊपर नहीं जाती, वो मतलब एड्रेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो वो इधर ही रुक जाती, जो आपने लाइन लगाई है उधर ही रुक जाती, हॉरिजॉन्टल ही रहती। एड्रेसिव फोर्सेस प्ले में कब आएंगी? एड्रेसिव फोर्सेस विजिबल कब होंगी आपको? जब वाटर और सरफेस या फ्लूइड और सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, उसके बगैर तो एड्रेसिव फोर्सेस का नहीं पता लगेगा ना। ऐसा ही है। यस सर। तो जहां जहां पे वाटर इस ट्यूब के अंदर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, वहां वहां वो एडेशन शो कर रहा है, फ्लूइड एडेशन शो कर रहा है। जहां पे जो सेंटर में है, जो सेंटर के अंदर है, वो तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा, वो तो अपनी कोहेसिव फोर्स की वजह से अपनी शेप जो है मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये लेवल इस तरह से बन रहा है। समझ आ गई बात? तो अब इस एडेसिव फोर्सेस की वजह से जो एक्चुअल लेवल होना चाहिए था, उससे हमारे पास एक एंगल बन रहा है। ठीक है, आइडली इट शुड बी हॉरिजॉन्टल। तो अब जो वाटर लेवल है वो, सॉरी मैंने रॉन्ग साइड में लाइन बना दी, मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। तो अब ट्यूब सरफेस के साथ एक एंगल बन जाएगा, जो ट्यूब की वर्टिकल लाइन है और जो वाटर है, तो एक एंगल थीटा बन गया। ऐसा ही है जी। सो वी कॉल दिस एंगल एज थीटा। हम देखना चाह रहे हैं फॉर वेटिंग फ्लूइड एंगल क्या होगा और फॉर नॉन वेटिंग फ्लूइड एंगल क्या होगा। ठीक है, उसके लिए अगेन हमें दो तरह की फोर्सेस देखनी पड़ेंगी। एक फोर्स क्या होगी जी, इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है उसका वेट, ऐसा ही है, किसके इक्वल होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे वो वेट की फोर्स? वेट ऑफ फ्लूइड W, that would be equal to specific weight gamma into volume of this tube, volume of fluid in this tube। ऐसे ही है जी, ऐसे कैलकुलेट होगा। गैमा स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर हम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेट की फोर्स आ जाएगी, लिक्विड का जो वेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट वुड बी अ डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, दिस इज W F। ठीक हो गया, क्लियर है? वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। इसको मैंने हम यूज करें, इसलिए V जो है मैंने उसकी बजाय ये सिंबल यूज कर रहा हूं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होगी इस कंटेनर? वी से दैट जी ये जो लेवल है हमारे पास, दिस इज सरफेस से लेकर यहां तक जो ये लेवल राइज हुआ है, दिस इज इक्वल टू H। ठीक है, दिस इज इक्वल टू H। रेडियस ऑफ दिस ट्यूब इज कैपिटल R अगेन। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम होगी? पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया हो गया, उसको H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। सो गैमा पाई आर स्क्वायर H। क्लियर जी? सेकंड फोर्स है वो सरफेस टेंशन की फोर्स होगी, जिस वजह से ये लेवल हमारे पास बन रहा है इस तरह से। तो वो फोर्स कहां पे एक्ट करेगी? अलोंग विच लाइन? ये जो डार्क ब्राउन में लाइन ड्रॉ जिसको मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, दैट वुड बी सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से लेवल जो है वो इन्वर्टेड बना है, कर्व बन रहा है, अदरवाइज तो ये हॉरिजॉन्टल होता। ये किसके इक्वल होगी जी? वेट की फोर्स को बैलेंस क्या करेगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसको ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा, वेट की फोर्स को बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन का फोर्स का y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सो दैट वुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा जी? स्टैटिक्स पढ़ी आप सबने जी, FST cos थीटा। cos थीटा। और FST किसके इक्वल होगा जी? किसके इक्वल होगा? सिग्मा इनटू L। सरफेस टेंशन फोर्स इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय, और लेंथ क्या होगी यहाँ पे अगेन जी? H along दी सरफेस। तो सरफेस यहाँ पे क्या है? ट्यूब का सर्कुलर सरफेस, उसका जो सरकमफ्रेंस बनता है। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई r cos थीटा।
जल्दी से दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे और आप मुझे बताएंगे cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी। मैंने WF को इक्वेट करना है वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, दैट इज WF इक्वल्स टू FST के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा cos थीटा जी। R से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा cos थीटा इक्वल्स टू gamma RH। So gamma RH divided by ये क्या बता रहा है कि एंगल थीटा is a function of the surface as well as fluid as well as the geometry। रेडियस जितना बढ़ाते जाएंगे थीटा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बड़ा जी। अगर आपने प्रोनाउंस्ड इफेक्ट देखना है तो आपको रेडियस उतना ही कम करना है, यू नीड टू डिक्रीज रेडियस। ठीक है, तो रेडियस डिक्रीज करने से थीटा डिक्रीज होगा। ठीक है, रेफरेंस देख लें आप थीटा का। थीटा बढ़ने का मतलब क्या है, आपको जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो फिर आपको ट्यूब रेडियस जैसे बढ़ाते जाएंगे आपको वो इफेक्ट नजर नहीं आएगा, जैसा कि बड़े कंटेनर में हमें नजर नहीं आ रहा। ऑन दी अदर हैंड सरफेस टेंशन का भी फंक्शन है, फ्लूइड की डेंसिटी का भी फंक्शन है, तो H जो है वो हमें गिवन हो तो हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर थीटा गिवन हो तो हम H कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना लेवल राइज करेगा, एक्चुअल लेवल से कितना लेवल जो हमें ज्यादा नजर आएगा। क्लियर है? तो मैं एक मिनट जस्ट इसको कंक्लूड कर लेना। इट इंडिकेट्स दैट theta for fluids having theta less than 90 degree, having theta less than 90 degree, they are wetting fluids. They are wetting fluids. They have adhesive forces stronger than cohesive forces. Fluids having theta, for fluids where theta is greater than 90 degree, they are non-wetting fluids. And it is property of the fluid as well as the surface. For example, angle of water with glass surface is approximately 0 degree Celsius, 0 degree. Of mercury with glass is 135 degree Celsius, 135 degree. ठीक है जी, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे हम करते हैं जी, इट्स 9:50, हम 10 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, टर्म्स को क्लियर कर देते हैं। सर FST वाई कंपोनेंट में हमने L की वैल्यू जो 2 पाई r पुट की है वो कैसे आई है? L इज अ सरफेस फोर्स मेरे भाई। ठीक है, सर वो तो लेंथ यहाँ पे नहीं सरफेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ट्यूब को आप टॉप से देखें तो आपको सरफेस नजर आएगा। टॉप व्यू अगर ट्यूब का बनाऊं तो आपको इस तरह से नजर आएगा। यस सर, ऐसे ही है। और यस सर, इसका आप अगर फ्रंट से देख रहे हैं ट्यूब को तो यही चीज आपको ऐसे नजर आ रही है, यस ऐसे सर, ही है। यस तो सर। फिर सरफेस क्या हुआ, सर्कल हुआ, तो L क्या है उसकी सर्कल सर्कमफ्रेंस लेंथ, तो यूं सरफेस टेंशन फोर्स अलोंग दी लेंथ एक्ट करता है, तो फिर जो L है दैट वुड बी 2 पाई r। ठीक ओके है, सर। इसका रेडियस जो है वो r है सर्कल। ये किसी और का क्वेश्चन? ये गैमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस गैमा जो ब्राउन में लिखा हुआ है ये वाला, यस सर। दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। ठीक है,